Once again, welcome to all of you in the new video of orthographic projection. In this video, we are going to observe one more object which is visible on the screen, that is in the isometric form, and we are going to convert that isometric object into the orthographic projection. And here, as usual, the step-by-step procedure that we are going to observe in detail. So let's start. So before proceeding, if you are new to my channel, you are watching this video first time, so please subscribe to my channel, like the video, share the video, comment on the video. If you are having any questions, any doubt, you can post in the comment. I will try to give the answer for all the comments. So let's move. The object which is observed on the screen, ये हमें object use करना है for discussing the procedure about orthographic projection. You can observe here the multicolors are used to understand the object in a better way. If you are going to observe here, it is having one semicircular slot at the bottom side, then some slant, yeah, some inclined portion at somewhat on the left side, at the somewhat upper side, which is in the orange color. On the extreme right side, one slot is there, rectangular slot. So such type of structure is there. One more inclined surface which is on the rear side of this vertical portion. So likewise, the object which is given here that we are going to consider for drawing the orthographic projection, the step-by-step procedure. So the very first thing that we have to observe the object in the detail with dimensions. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन दिए एक बार हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने हैं. The same object again, it is having the different shades at different surface, top, right, left, inclined surface, slant surface, the the portion between the two slant surfaces at the top. So it is having the dimensions, you can observe here 80, 40, 10 at the front side, then 70 mm at the somewhat right side, which is at the height of 30 mm. The total height is 30. Likewise, some dimensions, slot is also given, depth, width, then the portion at the top. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, बट जनरली एग्जाम में क्या होता है, इसका जो पोर्शन, इसका जो स्ट्रक्चर दिया जाता है हमें इस टाइप में दिया जाता है. तो ओनली लाइन व्यू, देयर आर नो सर्फेसेस आर कंसिडर, ओनली द लाइन व्यू इज गिवन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो द डिटेल व्यू ऑफ दैट सेम ऑब्जेक्ट विदाउट एनी सरफेस, विदाउट एनी कलर शेड. तो हमें इस ऑब्जेक्ट को आज कंसिडर करना है टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आइसोमेट्रिक व्यू हमें दिया है, उसके हमें तीन व्यूज ड्रॉ करने हैं. द फ्रंट व्यू होता है ऑलवेज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यहाँ से देख के हमें उसका फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. टॉप व्यू होता है ऑलवेज व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप साइड. और जो थर्ड व्यू हमें ड्रॉ करना होता है, यहाँ पे दोनों भी व्यू पॉसिबल होते हैं, बट आउट ऑफ टू साइड व्यू, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हमें दोनों में से एक ही यहाँ पे क्रिएट करना है. आइदर इट इज गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ओनली साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए बोला एक ही साइड व्यू, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू क्रिएट हो सकता है. तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, जनरली वी हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स. एंड जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम फ्रंट व्यू डायरेक्शन से देखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला पोर्शन या राइट वाला पोर्शन इजीली प्रॉपरली विजिबल है और जो मैक्सिमम फीचर्स हमें पता कर सकता है. तो हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द फ्रंट व्यू डायरेक्शन, तो हमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन हमें विजिबल है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम सरफेस इज विजिबल होता है. तो इस केस में जो साइड व्यू बनेगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल प्रोसीजर कि जो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में. उसके स्टेप्स हम यहाँ पे पहले पता करेंगे बिफोर ड्राइंग द एक्चुअल डायग्राम, जो हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्रिएट करना होगा. तो वहाँ पे जो अपना स्टेप्स है, जो जनरली 6 स्टेप आई विल रिकमेंड टू अप्लाई फॉर ऑल द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट इन अ प्रॉपर वे. तो स्टेप नंबर 1 हो गया, हमें कौन से 3 व्यूज ड्रॉ करने हैं ये हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए. मिनिमम 3 व्यूज, यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू क्रिएट हो सकता है, बट जो मैक्सिमम पोर्शन दिखाएगा वही हमें साइड व्यू क्रिएट करना होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट व्यू बनेगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, टॉप व्यू बनेगा फ्रॉम द टॉप साइड, और फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज पॉसिबल है. तो ये 3 व्यूज हमें ड्रॉ करने हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. देन सेकंड स्टेप होता है कि हमें ओवरऑल डायमेंशंस पता करने हैं. Overall dimension means what is the total length of the object, what is the total height of the object, and what is the total width of the object.
ओके। तो ये लेंथ जो हमें फाइंड आउट करना होता है, इट इज जनरली फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ एक्स। जो हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो जो हॉरिजेंटल मेजरमेंट होगा टोटली फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, तो वो हो जाएगा टोटल लेंथ। तो यहाँ पे 80 प्लस 40 प्लस 10, तो ये हो गया अपना नियर अबाउट टोटल 130 टोटल लेंथ हो गया। हाइट, इट इज ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम साइड से टॉप पोर्शन तक, बॉटम कॉर्नर पॉइंट से टॉप पोर्शन तक हमें हाइट मेजर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट साइड में 30 हाइट इस फर्स्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन का दिया है, उसके बाद यहाँ पे 30 दिया है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हाइट जो है, जनरली कुछ डायमेंशंस हमें डायरेक्टली नहीं दी जाते, वहाँ पे हमें कुछ सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमें पता करना होता है। जनरली एडिशन ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 30 प्लस 30 टोटल हाइट हो गया 60, एंड विड्थ जो हमें पता चलता है या ब्रेड्थ जो पता चलता है फ्रॉम द साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइड व्यू आप अगर देखोगे, यहाँ पे तो कुछ भी डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे टॉप में भी नहीं है, लेफ्ट साइड में। बट अगर हम राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 प्लस 20 ऐसे 3 मेजरमेंट दिए। मतलब ये स्लॉट का भी मेजरमेंट यहाँ से पता चलता है कि ये राइट वाला एज, उसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ कितना है, और बीच वाला जो स्लॉट है उसका विड्थ कितना है। इंटरनल डेप्थ यहाँ पे दिया है 30 तो ये जो स्लॉट का भी मेजरमेंट हो जाएगा, बट साइड व्यू से देखने के बाद टोटल विड्थ बनेगा 60 तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 होगा, हमें तीनों डायरेक्शन से जब हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना होता है, तो वहाँ से हमें ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना है, इज देयर एनी हिडन पोर्शन। मतलब फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे, तो कुछ हिडन पोर्शन होगा, जो हमें हिडन पोर्शन डैश लाइन या हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। ओके। तो जहाँ पे हम फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे सेमी सर्कल, ये इंक्लाइन पोर्शन, ये वर्टिकल पोर्शन, ये ग्रे कलर का कंप्लीट पोर्शन हमें यहाँ पे विजिबल होगा। बट यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का जो इंक्लाइन सरफेस है, स्लंट सरफेस है, वो हमें विजिबल नहीं होता है, बट इट इज गेट हाइड बिहाइंड दिस सरफेस, ये येलो कलर के पोर्शन के पीछे। बट ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, उसका जो इंक्लिनेशन है, सेम इंक्लिनेशन ऑरेंज कलर के पोर्शन का भी है। तो यहाँ पे ये दोनों सरफेस, ब्लू एंड ऑरेंज कलर सरफेस, व्हाइल लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट व्यू, वो हो जाता है ओवरलैप। ओके। देन यहाँ पे आप देख सकते हो पर्पल कलर का जो पोर्शन है स्लॉट का, ये हमें फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे दो कॉर्नर पॉइंट के दो वर्टिकल लाइन, और दोनों भी ओवरलैप हो जाएंगे, ये हमें हिडन लाइन से बनाने पड़ेंगे फ्रंट व्यू से। जब हम टॉप व्यू से ऑब्जर्व करेंगे, तो टॉप व्यू से हमें राइट वाला पोर्शन, स्लॉट वाला पोर्शन सी अल्फाबेट जैसा दिखता है। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप वाला पोर्शन प्लस ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर का इंक्लाइन सरफेस, इट इज ऑल्सो विजिबल फ्रॉम द टॉप व्यू। बट जब हम बॉटम वाला सेमी सर्कुलर जो स्लॉट है, पोर्शन है, तो ये हम अगर टॉप व्यू से देखेंगे, तो इट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। तो ये हो जाएगा उसके दो एंड पॉइंट डायमीटर की पोजीशन पे 40 mm पे, फ्रॉम लेफ्ट साइड 10 mm डिस्टेंस पे उसके टू हिडन लाइंस बनेंगे। और हम जब साइड व्यू से देखते हैं, तो हमें ये ग्रे वाला पोर्शन somewhat T alphabet type, then orange color inclined portion and blue color inclined portion, ये डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर होने के बाद ये हमें डायरेक्टली विजिबल होगा। बट ये सेमी सर्कुलर पोर्शन, इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड व्यू, प्लस ये जो स्लॉट है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू से ये भी विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये पता करना है स्टेप नंबर 3 में कहाँ कहाँ पे हिडन पोर्शन बनेगा। स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, जो हमें तीन व्यूज ड्रॉ करने हैं, तीनों व्यू के हमें पोजीशंस फिक्स करना है इन द फोर क्वाड्रेंट। फोर क्वाड्रेंट मतलब जनरली हम जो यहाँ पे एक्स वाई लाइन, एक्स वन वाई वन लाइन हम यूज करते हैं, दीज आर द टू रेफरेंस लाइन्स फॉर क्रिएटिंग द फ्रंट व्यू टॉप व्यू। तो इन दो रेफरेंस लाइन का अगर हम पोजीशन देखेंगे, इट विल क्रिएट द फोर क्वाड्रेंट्स, और उस फोर क्वाड्रेंट में हमें तीन व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू को रिप्रेजेंट करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू जनरली होता है टुवर्ड्स राइट ऑफ द फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, टॉप व्यू बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके। इस टाइप से हमें यहाँ पे पोजीशंस फिक्स करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 डिग्री लाइन। ओके। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4 टू फिक्स द पोजीशन ऑफ थ्री व्यूज इन द फोर क्वाड्रेंट। देन स्टेप नंबर 5, हर एक व्यू को हमें आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है, सो दैट द फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर, टॉप व्यू स्ट्रक्चर एंड साइड व्यू स्ट्रक्चर विल बी गेट क्रिएटेड विथ इन दैट आउटलाइन बॉक्स। और आउटलाइन बॉक्स हमें क्रिएट करना होता है फॉर क्रिएटिंग द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, हमें दो मेजरमेंट्स यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फ्रंट व्यू के लिए हमें यूज करना है लेंथ एंड हाइट। तो टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया 130 एंड हाइट हो गया 60 mm। देन टॉप व्यू के लिए लेंथ एंड विड्थ, जो लेंथ टोटल होगा उसका आउटलाइन बॉक्स, बट मेक श्योर दोनों भी
फ्रंट टू टॉप व्यू का लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन है एग्जैक्टली एक ही अलाइन होना चाहिए, सो दैट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन विल बी देयर। और साइड व्यू जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ का हमें यूज करना है। तो ये हो गया, मतलब मान लीजिए यहाँ पे फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट, ये हो गया उसका आउटलाइन बॉक्स। टॉप व्यू में लेंथ विड्थ, ये हो गया उसका आउटलाइन बॉक्स। और साइड व्यू में हाइट एंड विड्थ का आउटलाइन बॉक्स। बट ये हमें बाय टेकिंग द प्रोजेक्शन फ्रॉम फ्रंट व्यू टू साइड व्यू, फ्रंट व्यू टू टॉप व्यू, इस टाइप में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, टॉप व्यू टू साइड व्यू अप टू द 45 डिग्री, और उसके बाद उसको हमें ट्रांसफर करना है अपर। ये होता है स्टेप नंबर 5। एंड स्टेप नंबर 6 इज ऑलवेज आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 व्यूज हमें क्या करना है, जो मेजरमेंट्स आइसोमेट्रिक व्यू या 3D व्यू के अंदर हमें यहाँ पे दिए गए जितने नंबर ऑफ डायमेंशंस है, वो सारे डायमेंशन हमें तीनों व्यू में डिवाइड करना है या रिप्रेजेंट करना है। सो दैट इज द स्टेप नंबर 6। आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 व्यूज हमें जो मेजरमेंट्स है सारे के सारे अपने 2D डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने। सो दिस इज द बेसिक steps. These are the basic steps for creating the orthographic projection. So we can apply these 6 steps for all the numericals of orthographic projection. Okay, so let's start the step by step procedure to create the 3 views. Hope so यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। If you are having any questions, you can please post that question in the comment, and please like, share and subscribe the channel. Okay, so let's move towards the step. जो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, इट इज ऑलवेज इन द क्वेश्चन इन द लाइन फॉर्म। तो हमें अभी यहाँ पे पता चल गया है, जो कलर फॉर्म में हमें देखा था, तो जो जो सरफेस हमें विजिबल होगा तो उसको हमें आउटलाइन से रिप्रेजेंट करना है, सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे सेमी सर्कल का देन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन ऑफ 70 mm, वर्टिकल लाइन, लाइकवाइज ये हमें पोर्शन रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें वो पता करना है। So let's start the step-by-step procedure to understand the how to draw the views. Okay, सबसे पहले हमें रेफर करना है जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको, जो कि लाइन फॉर्म में हमें दिया जाएगा और उसके साथ एक एरो मार्क दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमें यूज करना है, जो हमें क्वाड्रेंट्स क्रिएट करने हैं बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ 2 रेफरेंस लाइन जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमें रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करना है। दूसरा स्टेप रहेगा देन X1 Y1 लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू फर्स्ट रेफरेंस लाइन। देन एज पर द पोजीशंस हमें पता चल चुका है कि फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, टॉप व्यू थर्ड क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री लाइन, बट नो नीड टू मेंशन द एंगल हियर, हमें एग्जैक्टली 45 लेना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर ये एंगल 45 से कम हो जाएगा, लेस या ग्रेटर, तो आपके साइड व्यू के मेजरमेंट गलत हो जाएंगे एंड देन इन दैट केस साइड व्यू का स्ट्रक्चर क्रिएशन रॉन्ग हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली 45 डिग्री लाइन लेके ही आप रिप्रेजेंट करोगे। देन फ्रंट व्यू में हमें आउटलाइन बॉक्स क्रिएट करना है। फ्रंट व्यू में आउटलाइन जो बॉक्स क्रिएट होगा टोटल लेंथ एंड टोटल हाइट का। तो सबसे पहले टोटल लेंथ हो गया 130 mm, जो फ्रंट व्यू एक्स डायरेक्शन से हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 80 + 40 + 10, ठीक है। देन उसका जो हाइट है टोटल 60 mm। यहाँ पे अगर हम लाइंस प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसका आउटलाइन बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर विजिबल हो रहा है, तो उस टाइप में आपको आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो उस टाइप में आपको जो जो लाइंस विजिबल है, जो इंक्लाइन है, जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उस टाइप में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, ये जो 10 mm का मेजरमेंट है, ये अब मैं उसका ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करूंगा और यहाँ से मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, मतलब यहाँ पे राइट साइड जाऊंगा, देन अपर, देन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई विल ट्राई टू कंप्लीट द फ्रंट व्यू। तो ये आपका चॉइस है, आप किसी टाइप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। ओके, सो बट मेक श्योर कि जो आउटलाइंस आपको विजिबल हो रहे हैं वो आप एज इट इज यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि लेफ्ट साइड है सेमी सर्कल के। देन 10 mm लाइन के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ होगा जिसका डायमीटर दिया है 40 mm और उसका जो सेंटर पॉइंट होगा 20 mm पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक लाइन सेंटर लाइन ऑफ द सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 20 mm, बिकॉज यहाँ पे डायमीटर दिया है 40 mm। तो यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ हो चुका है बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द सेंटर पॉइंट। देन सेमी सर्कल के बाद 80 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन है
तो यहाँ पे 80 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया बॉटम वाला विजिबल पोर्शन फ्रॉम द फ्रंट व्यू। देन राइट साइड में 30 mm हाइट का वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे भी राइट साइड से 30 mm हाइट का वर्टिकल लाइन। उसके बाद 70 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्चुअली 3D व्यू में इंक्लाइन दिखेगा, बट हम जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इंक्लाइन लाइन जो यहाँ पे होती है, जो एक्चुअल में 30 डिग्री इंक्लाइन होती है, तो हमें उसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा 70 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन। वहां से अगेन यहाँ पे आप देखोगे वर्टिकल लाइन है 30 mm का, तो वहां से 30 mm का वर्टिकल लाइन। देन अगेन एट द टॉप यू कैन ऑब्जर्व ये 30 mm डायमेंशन है, तो ये भी लेंथ 30 mm होगा। तो टॉप में अगेन हॉरिजॉन्टल 30 mm रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद यहाँ पे स्लंट लाइन है, जो कि लेफ्ट साइड से जो आप यहाँ पे देखोगे 30 mm डायमेंशन यहाँ पे दिया है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ तक मैच कर रहा है। मतलब ये राइट वाला 30 और लेफ्ट वाला भी हाइट 30 होगा। तो यहाँ पे हमें जो टॉप में जो पोर्शन रहेगा यहाँ तक बन गया, बट उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक इंक्लाइन लाइन है, जो कि समवॉट ऑन द रेयर साइड, बट ये दोनों जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एक लाइन में ही दिखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट 30 mm का, और उसके बाद रिमेनिंग लाइन। देन उसके बाद जो हमें रिप्रेजेंट करना है वर्टिकल लाइन, और उसके बाद ये सेकंड वर्टिकल लाइन। ओके, और यहाँ पे जो स्लंट लाइन बनेगा बॉटम से 30 mm और राइट साइड से 30 mm। तो बॉटम से 30 mm और यहाँ से राइट साइड को 30 mm पॉइंट लोकेट करेंगे, एंड बिटवीन दीज टू पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ द स्लंट लाइन विच इज विजिबल फ्रॉम द फ्रंट व्यू। तो यहाँ तक हो गया आपका 90% फ्रंट व्यू कंप्लीट। तो 10% जो पोर्शन रहेगा दैट इज इनविजिबल पोर्शन ऑफ द स्लॉट। तो अभी ये स्लॉट जो क्रिएट हो चुका है उसका डेप्थ है 30 mm फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट साइड। तो राइट साइड टू लेफ्ट साइड हमें 30 mm डिस्टेंस काउंट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 30 mm इस पॉइंट से होगा, और 30 mm डिस्टेंस पे इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे वर्टिकल लाइन होता है 30 mm का, एंड दैट इज कम्प्लीटली इनविजिबल फ्रॉम द फ्रंट व्यू। तो हम इसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इट इज अ कंप्लीट 100% completion of front view। ओके, देन फ्रंट व्यू कंप्लीट होने के बाद हमें टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लेने हैं। जो लेंथ होगा 130, और दूसरा डायमेंशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है विड्थ 20 + 20 + 20 60। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ 130 mm के प्रोजेक्शन डाउन साइड लेंगे, और उसके बाद जो उसका विड्थ है यहाँ पे सेकंड मेजरमेंट विड्थ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो उसके बाद टॉप व्यू में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये आउटलाइन जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली, इसका जो बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक आपको कम्प्लीटली विजिबल दिखेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ये जो टॉप व्यू में हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सिमेट्रिक होता है अलॉन्ग द लेंथ। मतलब यहाँ पे जो लेंथ वाइज अगर हम देखेंगे टॉप व्यू में ये दोनों पोर्शन यहाँ तक का और इस साइड का पोर्शन दोनों सिमेट्रिक होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना है। सेकंड सिमेट्रिक लाइन जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है उसके लिए सेकंड सिमेट्रिक लाइन या चेन लाइन हमें रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जो सबसे पहला पोर्शन रहेगा ये इंक्लाइन लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देन ये इंक्लाइन लाइन, ये कम्प्लीटली 130 mm का हमें विजिबल लाइन दिखेगा टॉप व्यू में। उसके बाद ये 20 mm का पोर्शन, ओके, जो कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद डेप्थ इनर साइड 30 mm, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेजरमेंट लेके हिडन लाइन बनाया होगा, तो जस्ट सिंपली उसका ही प्रोजेक्शन लेना है। नो नीड टू मेजर द डिस्टेंस। वंस अगेन जस्ट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो पोर्शन क्रिएट होता है समवेयर नो नीड टू टेक द मेजरमेंट, हमें जस्ट प्रोजेक्शन लेके कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे स्लॉट ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है विथ हिडन लाइन, उसका ही वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन लेना है। और यहाँ पे 20 mm डिस्टेंस होने के बाद इनर साइड डेप्थ हो गया 30 mm। ओके, देन द विड्थ ऑफ द स्लॉट इज अगेन 20 mm, तो वहाँ पे हमें और 20 mm का डिस्टेंस लेके लाइन विजिबल लाइन ड्रॉ करना है। और उसके बाद अगेन कमिंग टू द राइट साइड इन द स्लॉट जो 30 mm का लेंथ है यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। देन अगेन ये वाला जो पोर्शन है 20 mm टॉप व्यू में, मतलब ये एक्चुअली सी अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर है, हमें उसको क्रिएट करना है। एंड देन फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड टॉप व्यू से ये आउटलाइन वाला पूरा एज हमें विजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए ये वाला एज बॉटम समवॉट मिडल पोजीशन, अपर पोजीशन, मिडल पोजीशन, और ये भी हमें ये वाला डिस्टेंस फर्स्ट, उसके बाद सेंटर वाला 30 और उसके बाद ये वाला पोर्शन। ओके, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये हो गया सबसे पहले जो हमें आउटलाइन से दिखने वाला पोर्शन हमने क्रिएट किया। उसके बाद ये टॉप वाला पोर्शन है समवॉट टी अल्फाबेट जैसा, तो उसका जो एज है मतलब इस कॉर्नर पॉइंट से हमें पहले रिप्रेजेंट करने से पहले हम लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो स्लंट सरफेस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम प्रोजेक्शन यहाँ पे लेने के बाद इसका जो पोर्शन है यहाँ तक
क्रिएट होगा, मतलब ये रियर वाला इंक्लाइन रेक्टेंगुलर पोर्शन जो रेडिश शेप में रेक्टेंगल दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पे जो मेजरमेंट यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन लिया है तो उसका रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये एक्सट्रीम आउटर एंड एक्सट्रीम इनर, ये जो दो पोर्शन रेक्टेंगल्स इंक्लाइन पोर्शन में है उसके रेक्टेंगल्स क्रिएट हो चुके हैं। देन ये वाला जो पोर्शन है जो समवॉट एट द मिडल पोजीशन, इस कॉर्नर पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन ले लिया है। और हम जब टॉप व्यू में देखते हैं तो ये वाला जो एज है हमें सबसे पहले टॉप व्यू से विजिबल होगा, तो कंप्लीटली डार्क लाइन से क्रिएट होगा। तो ये हो गया 90% कंप्लीशन ऑफ द टॉप व्यू। तो अभी 10% जो पोर्शन रिमेनिंग है तो हमें रिप्रेजेंट करना है हिडन पोर्शन। और टॉप व्यू में जब हम देखते हैं तो ये बॉटम वाला सेमी सर्कुलर स्लॉट है, ये विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से सेमी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट, मतलब डायमीटर का जो रिप्रेजेंटेशन है 40 mm, उसके एंड पॉइंट से हम वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन लेंगे। और ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है एट वन एंड, तो यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि ये जो पोर्शन है थ्रू आउट द विड्थ, मतलब अलोंग द विड्थ ये रिप्रेजेंट हो चुका है। तो अलोंग द विड्थ ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम सर्कुलर स्लॉट। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी टनल को देखा होगा, टनल तो ऑन द रोड हाईवेज पे जो टनल होता है तो थ्रू आउट द उसका जो पोर्शन है, लाइकवाइज ये टनल जैसा स्ट्रक्चर है एट द बॉटम। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और विड्थ अलोंग द विड्थ है, तो टोटल विड्थ है अपना 60 mm। तो 60 mm में ये सेम सर्कुलर सेमी सर्कुलर स्लॉट जहाँ का मटेरियल रिमूव हो चुका है, जैसे टनल क्रिएट करने में यूज होता है। तो यहाँ पे हमें इस दो प्रोजेक्शन लाइन से दो हिडन लाइन थ्रू आउट द विड्थ बनाना है 60 mm में। तो अभी ये हो गया कंप्लीट टॉप व्यू। देन फॉर क्रिएटिंग द साइड व्यू, जस्ट हमें क्या करना है प्रोसीजर, हमें फ्रंट व्यू टू साइड व्यू, टॉप व्यू टू साइड व्यू प्रोजेक्शन लेना है। सो लेट्स सी द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग द साइड व्यू। ओके, तो साइड व्यू जो क्रिएट करना होता है वहाँ पे हमें साइड व्यू में दो डायमेंशंस रिप्रेजेंट करने होते हैं, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट हमने ऑलरेडी 60 में यहाँ पे फ्रंट व्यू में लोकेट किया है, तो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली हाइट के प्रोजेक्शन साइड व्यू में ट्रांसफर करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड सिमिलरली जो विड्थ है हमें टॉप व्यू में रिप्रेजेंट किया है उसके जो प्रोजेक्शन 45 डिग्री तक लेने हैं और उसके बाद हमें उसको ट्रांसफर करना है अपवर्ड। तो ये क्रिएट करेगा आउटलाइन बॉक्स, मतलब इस टाइप के आउटलाइन बॉक्स हमें फ्रंट टू टॉप में भी क्रिएट करना कंपलसरी होता है, सो दैट आपको पता चले कि आपका व्यू किस रीजन में, उसका रीजन या उसका मार्जिन क्या रहेगा, कितने एरिया में वो क्रिएट होगा। ओके, तो ये हो गया अपना साइड व्यू का आउटलाइन बॉक्स क्रिएट। तो जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो हमें यहाँ पे अगेन यू कैन ऑब्जर्व ये समॉट रिवर्स या इन्वर्टेड टी अल्फाबेट जैसा स्ट्रक्चर सबसे सब ये इनिशियली दिखेगा। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से दिखेंगे तो एक्सट्रीम फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर ये पोर्शन रहेगा। उसके बाद ये दो स्लंट सरफेसेस इंक्लाइन सरफेस होंगे, ये भी हमें राइट हैंड साइड व्यू से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड व्यू से विजिबल होंगे। तो उसके बाद जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है एट द बॉटम, ये साइड व्यू से भी इनविजिबल है। और ये जो स्लॉट है जो कि एक्सट्रीम राइट साइड में हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो एक्सट्रीम आउट अवे, तो दैट स्लॉट इज ऑल्सो नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है वर्टिकल लाइन से, मतलब वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड अबाउट दिस सेंटर लाइन या सिमेट्रिक लाइन। तो ये हो गया सबसे पहले अपना लाइन। देन जब हम ऑब्जर्व करेंगे साइड व्यू से तो एक्सट्रीम बॉटम वाला 60 mm का लाइन कंप्लीटली विजिबल है, तो हमें यहाँ पे बॉटम में जो प्रोजेक्शन ले उस लाइन उसके ऊपर बॉटम का हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद अगर आप देखोगे वर्टिकली 30 mm और उसके बाद ये स्लैंट लाइन है, तो ये मैक्सिमम टोटल हाइट 60 mm तक ये पूरा लाइन वर्टिकल प्लस इंक्लाइन ये दोनों भी विजिबल होंगे। तो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली 60 mm का डार्क लाइन क्रिएट किया है। उसके बाद टॉप साइड में ये जो स्मॉलर लेंथ का जो लाइन लग रहा है यहाँ पे आप देखिए, टोटल विड्थ है 60, उसमें से बीच वाला 30 चला गया, तो यहाँ पे 15 mm ये डिस्टेंस है। तो हम इसको टॉप व्यू में यहाँ पे 15 mm किस पोर्शन का, ये वाला पोर्शन। ओके, देन मिडल में 30 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज आल्सो विजिबल, तो हम यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और लेफ्ट वाला पोर्शन 15 mm का, उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड अगेन द कंप्लीट लेफ्ट साइड लाइन स्लंट प्लस वर्टिकल, ये भी हमें विजिबल होगा। तो ये हो गया आउटलाइन बॉक्स के ऊपर उसका आउटलाइन मार्जिन जो हमें इजीली विजिबल हो रहा है। उसके बाद जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए आप, जो उस पोर्शन का हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लिया है जो कि हाइट है 30 mm फ्रॉम द बॉटम। तो
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लाइन सरफेस है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, और उसके जो स्ट्रिप टॉपी में क्रिएट हो गए 15 mm बाय 30 mm के, उसके हमें प्रोजेक्शंस लेने हैं यहाँ से। तो यहाँ 45 डिग्री तक प्रोजेक्शन हो गए और उसको हमें ट्रांसफर करना है अपवर्ड। और साइड व्यू से ये दोनों भी रेक्टेंगल स्ट्रिप जो कि इंक्लाइन सरफेस है वो हमें विजिबल होंगे। तो ये राइट वाला बॉटम का 15 mm, उसके बाद लेफ्ट वाला 15 mm, और उसके बाद जो स्लैंट लाइन है टोटल हाइट तक वो बन गया दो रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड। दीज आर सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल सेंटर लाइन, ओके, सिमेट्रिक लाइन। उसके बाद जो सर्कुलर पोर्शन है, बॉटम वाला सर्कुलर पोर्शन है, उसका जो टोटल हाइट बनेगा बॉटम से टॉप तक 20 mm का, उसका प्रोजेक्शन हमें लेना है साइड व्यू में। और वहां पे ये थ्रू आउट द विड्थ है, ऐसा हमें हमने हमने अभी कंसीडर किया था, डिस्कस किया था लाइकवाइज। तो ये सेमी सर्कुलर पोर्शन का टोटल हिडन लाइन अलोंग द विड्थ बनेगा, जो उसका टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक 20 mm। देन ये जो स्लॉट है दैट इज आल्सो नॉट विजिबल, तो स्लॉट के प्रोजेक्शन पहले 45 डिग्री तक, उसके बाद हमें ट्रांसफर करना है टुवर्ड साइड व्यू। और उसका जो टोटल हाइट है, तो टोटल हाइट है फ्रॉम बॉटम टू यहाँ तक 30 mm का, मतलब सर्कल का रेडियस है 20 और ये टोटल है 30। तो इसका ऑलरेडी प्रोजेक्शन यहाँ पे हमने ले लिया है। तो वहां तक ये जो वर्टिकल लाइन इस कॉर्नर पॉइंट से बनते हैं उसके हो जाएंगे दो हिडन लाइंस, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इनर के दो कॉर्नर पॉइंट उससे भी दो वर्टिकल लाइंस क्रिएट होते हैं, और दैट लाइंस आर इनविजिबल टू द ऑब्जर्वर, तो उसकी वजह से उसको हिडन से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ तक हो गया 95% कंप्लीशन ऑफ द साइड व्यू। तो यहाँ पे एक लास्ट पोर्शन बाकी है। अगर आप साइड व्यू से देखोगे, यहाँ बीच में जो लाइन है ये एक्चुअली प्रोजेक्शन लाइन है, बट इट इज नॉट द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वहाँ पे कुछ भी एजेस या वहाँ पे एज नहीं है। तो इस पोर्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा ये आपको सोचना है। बट वेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द स्लॉट विच इज ऑन द बैक साइड ऑफ दिस वर्टिकल पोर्शन, जो कि इनविजिबल होगा, जिसका हाइट है 30 और यहाँ का भी हाइट है 30 mm। तो यहाँ पे आप देखिए उसी हाइट के ऊपर ये यहाँ पे इन दो कॉर्नर पॉइंट के बीच में एक एज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट है। तो ये एज हमें रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। तो वो उसका पोजीशन है फ्रॉम बॉटम 30 mm, ये पोजीशन हमने ले लिया है। और इस पोर्शन में वो लाइन इनविजिबल क्रिएट होगा। तो ये वाला लास्ट लाइन था जो कि 100% कंप्लीट कराएगा साइड व्यू को, ओके। सो यहाँ तक ये हो गया उसका डिटेल प्रोसीजर, होप सो आपको समझ में आ रहा है। और लास्ट का स्टेप रहेगा, जितने सारे डायमेंशन यहाँ पे दिए, ऑल द डायमेंशन हैज टू गेट रिप्रेजेंटेड इन द three views, either equally divided, equally distributed, या you can represent one dimension at one position। जैसे कि यहाँ पे पता ऑब्जर्व करिए, ये टोटल लेंथ है 130 mm, ये फ्रंट व्यू में भी हमें विजिबल है और टॉप व्यू में भी हमें विजिबल होता है, बट ये 130 mm दोनों साइड देने की जरूरत नहीं है। सो एज पर द रूल ऑफ डायमेंशंस इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ड्राइंग, वन डायमेंशन शुड बी रिप्रेजेंटेड एट वन लोकेशन ओनली। तो मतलब अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे 130 टॉप व्यू में नहीं होगा, और यहाँ पे जो फ्रंट व्यू में हाइट है ऑब्जेक्ट का ये 60 mm है, तो साइड व्यू में भी हाइट सेम रहेगा। तो यहाँ पे सेम मेजरमेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं, मीन्स ओनली वंस या एट वन प्लेस ओनली वी हैव टू रिप्रेजेंट इट। देन रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, देन स्लॉट का डेप्थ, स्लॉट का विड्थ, देन लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ दिस पोर्शन 15 mm 15 mm, ये सारे डायमेंशन आपको ऑब्जेक्ट के अंदर थ्री व्यू जो हमने ड्रॉ किए उसके अंदर रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। और उसके बाद आप जस्ट सिंपली मेंशन कर सकते हो विद द कैपिटल अल्फाबेट फ्रंट व्यू, एफ व्यू, टीवी एंड एलएचएसपी। तो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द सॉल्यूशन। होप सो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है, आपके कुछ क्वेश्चंस है, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, so I will try to give the answer for all the comments। And at the last, once again I would like to request all of you, if you are new to my channel, you are watching the video first time, so please subscribe my channel, like the video, share the video with your friend circle, and comment on the videos. You can mention whether any improvement is required. If any changes are required to explain the procedure, you can mention through the comment. The comments are always welcome. So at the last, thank you so much for watching the video.